Good morning. Yes, good morning, students. Let's go for the next part of the chapter, the hack driver, which we started yesterday. And you have understood that there is a young liar who goes into the area of New Mullion, and there is a hack driver who helps him to find out Lutkins. For him, he has brought the summons, and he told about himself that he is known with the name of Bill, or tells the name of his company also. Then he takes a round with him in his vehicle, and they try to find out Lutkins, whom the lawyer had to give the summons. So we were at the end of the page 49, when we have seen that they went to the Fritz, to the shop at the back of the Fritz, where the Bill told the lawyer that he must be playing their poker. But when they did not find him, they went to a barber's shop, Gustav's. There also they did not find him. There were two customers and the owner of the shop, Swedish man. He told that he also had to take money from Lutkins, $35, and if he happens to meet him, he should collect his money also. We were here at the last lines of page 49. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit as Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. So he understood as they came out of the shop that Lutkins had to pay money for Gustav. So he had not come to that barber shop. He had gone to another barber shop, that is Gray's barber shop, for shaving. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left, probably for the pool room, and there they got the message at the Gray's barber shop that he had just left 5 minutes before, and he might have gone to the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. And there they got the information that he had taken the cigarettes and went from that place also. So we pursued him just behind him, but never catching him. So in this way, they were pursuing, uska picha kar rahe the, they were chasing him, but they were not able to catch him. For an hour till it was past 1 o'clock. And now the time has reached up to 1 o'clock and they were not able to find Lutkins. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. Now see the condition of this young liar. He was feeling at that time hungry because it was near about 1 o'clock time, but he was enjoying this trip with Bill of that village and his opinion about the village people, about his neighbors, that he scarcely cared about the thing or the matter for which he had come there. That was to serve summons to Lutkins. It says whether I found Lutkins or not, I was not bothered about this thing now, because he was enjoying the company of this hack driver, this Bill, and was not worried about anything else. So coming to the next page. How about something to eat? I suggested, let's go to a restaurant and I'll buy you lunch. And he suggested the hack driver Bill, because he was feeling hungry, that they should go and eat something. And he told that he will arrange lunch for him also from the restaurant. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. But he did not agree. He says all these, there are only 4 restaurants and they all are bad. They are not having good food. So I ought to go to home to my wife. Tell you what we will do. We will get the wife to pack a lunch for us. She won't charge you more than $50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. See the smartness of this person, Bill. He is not willing that the money of the food should also go out.
he told him that he will go home and tell his wife to pack lunch for both of them, and then he will charge for that lunch also. He told that she won't charge you more than half a dollar. Note down, half, more than, not more than half a dollar he has to pay for the lunch, and it would not cost him more than the greasy meal, greasy food which he could get from the restaurant. And then he told that they will go to the Wades Hill, हिल्स के ऊपर जाएंगे और वहां बैठकर वो खाना खाएंगे और अपना व्यू भी एंजॉय करेंगे. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. He understood this thing, that why Bill was so helpful for this young man who had come from the city, and it was not only the entirely matter of feeling of love and affection and helpfulness for him, it was his business point of view also. He was getting money for the cab also, for the vehicle also, for giving him the trip in that area, and he was getting money for the food also. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. So for the 6 hours he had paid him, and what was the amount fixed? $2 for 1 hour. It was decided in the beginning that he will pay $2 for an hour. So in this way he paid him for 6 hours, including the lunch time also. And it was not a less amount, it was good price he got, but he was no more dishonest than I charged the whole thing to the firm, but he felt that it was not his behavior of being dishonest, it was his business and he was doing it. Moreover, he was very much helpful to him also. He said he was not so dishonest as I would be, because I would be charging the whole amount from the firm. वहां जाकर वो खर्चा बताएगा कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, and he'll get the money for that. But it would have been worth paying him myself to have his presence, but he felt it is worth for paying him because he was helping him. He was taking him for the round of the village. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. And he felt that his company was good for him because he was fed up of his life in the city and now he was enjoying in that village. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million. As now they were enjoying their food, sitting on the hill, on the top of the hill, Wades Hill, and they were looking here and there about the pastures, the green areas, and creek. Creek is a little stream, water streams होती हैं, चश्मे होते हैं जैसे पानी के, which slipped among the trees. ट्रीज के बीच में वो इन चीजों को, सबको नेचुरल चीजों को एंजॉय कर रहा है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट विलेज. ही टॉक टू न्यू मिलियन, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन एंड ही वाज टेलिंग हिम अबाउट दिस एरिया ऑफ न्यू मिलियन. सारी उसको जानकारी दे रहा है अपने इस विलेज के बारे में. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट. And he drew a picture in front of him about all the people living in that village. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He was just telling about the people, laughing at them, trying to make him understand that many times he forgave their foolishness. What type of innocent people living in the village. He just making fun of them, and he was telling about those people everything to this lawyer. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. कि जैसे बिल्कुल उसके सामने वो पिक्चर उनकी प्रेजेंट करे जा रहा है, लाइव पिक्चर उनको दे रहा है. वो उस गांव के जितने भी लोग थे उनके बारे में इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है. कभी तो उसको बता रहा है कि यहाँ एक मिनिस्टर है, उसकी वाइफ है, जब वो बहुत ज्यादा डेप्ट में थी, कर्जे में थी, तो उसको इतनी भी टेंशन नहीं थी, तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे चर्च में जाकर गाया करती थी जस्ट टू गेट रिलैक्स. And then he told about the boys who were coming back from the college in the fancy clothes, different type of fashionable clothes they wear, and they come from the college, how they talk. Then he told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day.
She was not able to make the lawyer wear tie and collar on the same day. She tried to, but the lawyer was not able to. He made them all live. So in this way, he was presenting a live picture of the people of that village in front of him. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city, and to love it better. Says on that day, I got detailed description about this village New Mullion, which I did not know even about my city. कि अपने शहर के बारे में मुझे इतना नहीं पता था जितना कि उस गांव के बारे में पता चल गया. एंड आई स्टार्टेड हैविंग अ फीलिंग ऑफ लव फॉर दैट एरिया, दैट विलेज. Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. कि उसको शहर के बारे में या वहाँ के कॉलेजेस के बारे में कुछ इतना नहीं पता था, but he had traveled around a lot of the country. लेकिन अपने विलेज साइड में, अपने एरिया में बहुत घूमा था, उसने बहुत से काम करे हुए थे. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me, and from that experience of his adventures, he had developed a new philosophy, new idea about the simplicity and about the fun and the life of enjoyment which he was leading. And he even strengthened me also. He gave me the strength also, because he was feeling bored and fed up of his life, what he was leading, what work he was doing, and now he was getting interest in this area and in the things which Bill was telling him. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. Then after taking their lunch and enjoying this beautiful scene of the village, they again started for the search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. After all, at the end, they reached to a friend of Lutkins, and they made him admit what was the guess. He told again, a guess was given by his friend that Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. कि शायद ऑलिवर जो है वो अपनी मदर के फार्म हाउस में गया होगा, उनका घर है, दैट इज 3 miles टू द नॉर्थ साइड पे 3 miles पे उनका घर है, एंड ही माइट हैव गॉन टू हिज मदर. वी ड्रोव आउट देयर laying plans. कहते हमने पूरी प्लानिंग करी, एंड वी स्टार्टेड टुवर्ड्स their farmhouse where his mother lived. I know Oliver's mother. Now see again the description about Lutkin's mother given by Bill. कि हैक ड्राइवर बिल जो है वो उसको उसकी मदर के बारे में क्या बता रहा है. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर. कहता मैं उसकी मदर को जानता हूँ, बहुत भयानक है वो. Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs. कहता है एक बार मैं ट्रंक लेकर गया था. ट्रंक समझते हो ना, बॉक्स जैसे बने होते हैं मेटल के. तो कहता है मैं एक बार उनके लिए एक ट्रंक लेकर गया और उसने तो मेरी स्किन तक छील दी. शी ऑलमोस्ट टुक ऑफ माई स्किन, मतलब इतना मेरी को परेशान करा, बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स. क्योंकि मैंने उसको अच्छे से हैंडल नहीं करा. बॉक्स ऑफ एग्स होता तो ध्यान से हैंडल करता कि टूट ना जाए. तो मैंने कहता ट्रंक को उस केयरफुली वे में उसको हैंडल नहीं करा. एंड शी वॉज सो क्रिटिकल टू मी, एंड शी taught me a lesson. She's about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. Underline about his mother, what he's telling, that she is 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, और बिल्ली की तरह तेज है कहते हैं. एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बातें भी करती है, बहुत सी बातें करती है. I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. कहता मैंने सुना है किसी को कि ऑलिवर जो है उसको पता चल गया है कि someone is chasing him, कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है. So he has gone to hide behind his mother's skirts, कि अपनी मदर के कपड़ों में छिपने के लिए वो वहां पे भाग गया है. Well, we will try her, but you had better let me do it. कहता हम ट्राई तो करेंगे, लेकिन बेटर ये होगा कि आप मुझे करने देना. सी अगेन द स्मार्टनेस. उसको क्या कह रहा है, कहीं भी उसको खुद नहीं जाने दे रहा कि इंक्वायरी करने के लिए, पूछने के लिए, कि वो खुद जाकर पूछे. बिल कितना स्मार्ट है, हर बार उसको कहता है कि मैं जाऊंगा पहले, कि आप जाओगे तो उनको डाउट हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि मुझे जाने दो और मैं ही कहता बातचीत करूंगा, मैं ही पहले जाऊंगा. बट इट वुड बी बेटर इफ आई गो. You may be great at literature and law, but you have not had real training in swearing. कहता तुम लिटरेचर और लॉ में तो एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन तुम्हें बातचीत करने में या इस बात की ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे उसको ढूंढना है. इसलिए बेटर ये होगा कि मैं ही पहले अंदर जाऊंगा और मुझे बात करने देना.
We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. हम कहते फार्म यार्ड में पहुंच गए जो कि बहुत रिच नहीं लग रहा था, पुअर सा था, लेकिन वहां पर हमें कौन मिला? enormous and cheerful old woman. old woman से हम मिले, who was big in size, enormous. My guide bravely went up to her. गाइड कौन है यहाँ पर? बिल, हैक ड्राइवर, उसका गाइड बना हुआ ना, उसको ले जा रहा है जगह जगह पर उस एरिया में, तो न्यू मिलियंस एरिया में पूरा उसको दिखा रहा है। तो कहता मेरा जो गाइड था वो बड़ी ब्रेव तरीके से वो अंदर गया एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नूसन, द कार्टर एंड द हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर। तो अंदर जाकर उसको क्या कहता है? रिमेंबर मी, उसको कहता है याद रखना। मतलब एक तरह से इशारा दे रहा है, उसकी मदर भी उसके इशारे को समझ रही होगी, उसको हिंट दे रहा कि आई एम बिल मैग्नूसन, अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है उसको कि मैं बिल हूँ और मैं कौन हूँ? कार्टर और हैकमैन हूँ, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, कि मैं आपके बेटे को ढूंढने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। सी द आंसर मदर इज गिविंग, कहती मैं नहीं जानती ऑलिवर के बारे में और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. कहता ठीक है, जितना हो गया मजाक, बहुत नॉनसेंस आपने कर लिया, और ये आदमी जो है ये कोर्ट से आया है, शहर की कोर्ट से आया है और इसके पास लीगल ऑर्डर्स हैं, राइट है कि वो ऑलिवर लुटकिंस की सारी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है। ही हैज द राइट, लीगल राइट है उसके पास। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वाज इम्प्रेस्ड, कि उसको लगा कि उसकी इंपॉर्टेंस हो गई जब उसने बताया कि ये शहर की कचहरी से आया है, लीगली भेजा गया आदमी है और लुटकिंस के बारे में कुछ भी सर्च कर सकता है। तो उसको लगा कि आई हैव great importance there, and the woman also got impressed. She retired into the kitchen and we followed. किचन में चले जाती है और ये भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। She seized an iron from the old fashioned stove and marched on us shouting, you search all you want to, if you don't mind getting burnt first. She shouted and laughed at our frightened retreat. See the behavior the lady shows. किचन में जाती है और वहां से जाकर पुराने स्टाइल का उसका स्टोव था, उसमें से एक लोहे की रॉड उठाती है, आयरन रॉड जो कि गर्म थी, और इनको आगे से मारने को पड़ती है और इनको क्या कहती है कि आप उसके लिए सर्च करो, लेकिन अगर आपको जलने में कोई इतराज नहीं है तो, कि मतलब पहले ये रॉड से मैं आपको पीटूंगी, उसके बाद आप उसके लिए सर्च करना। एंड देन जब हम डर कर पीछे मुड़े, रिट्रीट मतलब पीछे की तरफ मुड़े, तो वो चलाते हुए हमारे ऊपर हंसने लग पड़ी हमारा ये रिएक्शन देखकर। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वाज लाफिंग एट अस। तो एकदम से बिल उसको क्या सजेस्ट करता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमें ये मार देगी, मर्डर कर देगी ये तो हमारा। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो उसको जाकर पूछता है क्या कि तुमने देखा कैसे स्माइल कर रही थी, वो हमारे पे कैसे हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वाज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। तो कहता मैं मान गया कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा हमारे लिए उसने डिसरिस्पेक्ट शो करी। डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मीन्स बहुत बुरा व्यवहार करा उसने, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, बहुत ज्यादा इंसल्ट करी हमारी। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. Since it was only 1 story high, Bill went round it, peering in at all the windows. फिर भी कहते हमने उस घर में अच्छे से सर्च करी, क्योंकि ये सिंगल स्टोरी हाउस था, तो हमने उसकी खिड़कियों में से, दरवाजों में से अंदर झांक कर देखने की कोशिश करी। We examined the barn and the stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. और जो उनका स्टेबल था, जहाँ पर अस्तबल था, घोड़े वगैरह रखे जाते थे, या और जहाँ पर वो अनाज वगैरह रखते थे कैटल के लिए, कहते हमने सारा वहां नजर मारी, बट वी वर श्योर दैट लुटकिन वाज नॉट देयर। इट वाज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन। और इतने में कहता मेरा आफ्टरनून ट्रेन का टाइम भी हो गया और बिल मुझे स्टेशन तक छोड़ आया। दैट मीन्स फॉर द होल डे दे केप्ट ऑन रोमिंग हियर एंड देयर, वॉन्डरिंग, ट्राई टू फाइंड दिस पर्सन, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड हिम। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। एक तरह से वो फेल हो गया था, लुटकिन को वो नहीं ढूंढ पाया। ही कुड नॉट सर्व द समन व्हिच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द कोर्ट फॉर द विटनेस। लेकिन अब उसको इस चीज की टेंशन नहीं थी, चिंता नहीं थी कि वो फेल हुआ है या वो लुटकिन को नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन, बट ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही एंजॉयड द कंपनी ऑफ द बिल and he had a good trip, enjoyed the village life. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Million to practice law.
सी व्हाट फीलिंग केम इन हिज माइंड, कि वो क्या सोच रहा था कि वहां पर ट्रेनिंग लेने की बजाय अपने होम टाउन पे जाकर वो अपने लॉयर की प्रैक्टिस करे। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद रास्ते में गाड़ी में वो बैठा बैठा क्या सोच रहा है कि उसको बिल की कंपनी इतनी अच्छी लगी और गांव के लोग इतने अच्छे लगे कि बड़े हेल्पफुल हैं, वो स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं, दे ऑल आर इनोसेंट एंड वेरी हेल्पफुल। तो वो क्या प्लानिंग कर रहा है कि वो वहां पर जाकर न्यू मिलियन में जाकर वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू करे, कि वो वापस न्यू मिलियन आए और वहां आकर अपनी प्रैक्टिस जो है लॉ की यहाँ स्टार्ट करे। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken simple wise neighbors? कहता अगर मुझे यहाँ पर बिल जो है इतना अच्छा आदमी मिल गया, डीप एंड रिचली ह्यूमन मीन्स अच्छी उसमें क्वालिटीज हैं, फ्रेंडली नेचर है उसकी, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं फ्रिट्स, जहाँ जिसकी शॉप के पीछे उसको बता रहा है कि वो पोकर गेम खेलता है, एंड गुस्टैफ कौन था, बार्बर, एंड 100 अदर्स स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, की बहुत सिंपल और इनोसेंट वाइज लोग हैं यहाँ पर रहने वाले इस गांव में, सॉफ्ट स्पोकन हैं, सारे काइंड और अच्छी नेचर के हैं, तो वाई कुड नॉट आई मेक फ्रेंड्स विद देम, कि वो भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे अगर मैं यहाँ आऊंगा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, उसको ये लगा। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फॉर्म्स। अंडरलाइन दिस इज द डिफरेंस ही फाउंड फॉर द सिटी पीपल एंड द विलेज पीपल। उसको लगा कि गांव के लोग जो हैं दे आर वेरी ऑनेस्ट and they are leading very happy life beyond the strict limitations of the universities and the law firms which are in the city, कि शहर के लोगों से वो बहुत सिंपल और ऑनेस्ट हैं। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और बड़ा खुश हो रहा था, एक्साइटेड था कि वो वहाँ आकर इस विलेज में न्यू मिलियन एरिया में अपना लॉ की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेगा। उसको ऐसा लगा कि खजाना मिल गया हो उसका और जिंदगी का एक नया रास्ता उसको मिल गया हो। But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning the case was coming up in the court. अब जैसे ही वो पहुंचता है और लुटकिंस के बारे में बताता है कि वो उसको नहीं मिला, तो उसको लगा कि ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इस काम के लिए उसको भेजा गया था। सो ही फाउंड ऑल ऑफ देम वेरी अपसेट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द केस केम टू द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और अगले दिन केस खुलना था और उनको लुटकिंस की वहाँ हाजिरी लगनी थी, उसकी विटनेस होनी थी। आई वॉज शेमफुल, यूजलेस फूल, कहता मुझे अपने आप में तब महसूस हुआ, एंड आई वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, कि मैं बड़ा यूजलेस और फूल पर्सन हूँ, कि मैं जिस काम के लिए गया वो काम तो मेरा हुआ नहीं और मैं इधर उधर इंजॉय करके वहां से वापस आ गया। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और तब मुझे समझ आया कि मेरा जो लीगल करियर शुरू होने जा रहा था एक लॉयर के तौर पे, वो बिना शुरू हुए ही खत्म होने पे आ गया, क्योंकि उसको पता था कि जो लीगली उसको जब भेजा गया था और वो काम नहीं करके आया, तो नेचुरली दोज पीपल विल बी एनॉयड कि उसने कोई काम नहीं करा। तो ही वाज फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिज एक्शन। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो चीफ था जिसने इसको भेजा था, he was just about to murder him, मतलब इतना गुस्से में था। he hinted that I might do well at digging ditches, तो उसको जैसे कि रिब्यूक करते हुए, स्कोल्ड करते हुए, गालियां निकालते हुए उसको डांट रहा है। कहता इससे बेटर तो तुम डिचेस को डिग कर लो, खाइयां खोद लो, तुम लॉयर का काम नहीं कर सकते। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, और उसको फिर से ऑर्डर दिया गया कि वो वापस न्यू मिलियन जाए। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और उसके साथ एक ऐसा आदमी भेजा गया जो कि ऑलरेडी लुटकिन के साथ काम कर चुका था, उसको पहचानता था। I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. And he was feeling sorry क्योंकि अब वो आदमी साथ है, तो अब वो बिल के साथ इधर उधर घूम नहीं सकेगा। It would prevent his loafing, roaming here and there without any purpose. When the train arrived at New Million, वो फिर से अब एक और आदमी को साथ भेजा जा रहा है, एंड दे अगेन केम टू न्यू मिलियन टू फाइंड आउट लुटकिंस। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform. जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वो फिर बिल वहां खड़ा है स्टेशन के ऊपर, नियर हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के पास। Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. और बड़ा हैरान होता है ये देखकर, बड़ा स्ट्रेंज उसको लगता है कि वो ओल्ड टिग्रेस, किसको कहा जा रहा है, लुटकिंस की मदर,
कि वो बूढ़ी टिग्रिस जो थी, लुटकिन की मदर, कहते वो वहां पास खड़ी थी उसके बिल के और बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लड़ नहीं रहे थे आपस में, जबकि जब वो पहले गया तो वो लड़ रही थी, उसको खाने को पड़ रही थी, मार रही थी उनको। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, मैंने कहता ट्रेन से उतरते उतरते स्टेप्स में ही अपने साथी को इशारा करके बताया कि ये बिल है, एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम, और उसको बता रहा है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने मुझे सारा गांव दिखाया, सारी जगह मेरे साथ गया उसको ढूंढने के लिए, एंड आई स्पेंड द होल डे विद हिम, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। और वो बड़ा हैरान होता है जो उसके साथ साथी आया वहां से, जिसने ऑलरेडी लुटकिन के साथ काम किया हुआ है, कहता ये ओलिवर लुटकिन है और इसने तुम्हें ये बिल है और इसने तुम्हें हेल्प करी ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए। यस, ही हेल्प्ड मी अ लॉट। और लॉयर आगे से फिर पॉजिटिव में आंसर देता है, कहता हाँ इसने मेरी बहुत हेल्प करी, ही मस्ट हैव, he is लुटकिन himself, कहते ये तो करेगा ही क्योंकि ये खुद लुटकिन है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. और रियली जब वो वहां पहुंचे उसको बड़ा हर्ट हुआ ये सुनकर, ये देखकर बड़ा परेशान होता है वो, कि जैसे ही उसने जाकर उस आदमी को समन्स दिए तो लुटकिन और उसकी मदर जो थी वो उसके ऊपर ऐसे हंस रहे थे जैसे कि वो कोई छोटा 7 साल का लड़का हो, a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और बड़े काइंड तरीके से और प्यार से उसको क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पड़ोसियों के घर जाके आप कप ऑफ कॉफी ले लो। तो क्यों पड़ोसियों के घर में भेज रहा है? बिकॉज he says I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. और बड़ा खुश होकर उसको कहता है कि मैंने तेरे बारे में उनको अपने पड़ोसियों को बताया, एंड दे आर वेरी एंशियस टू मीट यू, कि इतना मूर्ख आदमी भी है कि सारा दिन वो तेरे साथ घूमता रहा और पहचान नहीं पाया, किसी भी पर्सन के पास इतनी जगह गया और कहीं भी सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं हुआ, कहते इसलिए वो तेरे को मिलना चाहते हैं, दे आर वेरी एंशियस टू मीट यू, इसलिए उनके घर जाके कप कॉफी का जरूर पी के जाना। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, कि वही लोग रह गए हैं कहता टाउन में जो कि तुम्हें कल नहीं मिल पाए और वो तुम्हें मिस कर रहे हैं, दे आर वेरी एंशियस टू मीट यू। सी द रियलिटी, ही वाज सो स्मार्ट दैट ही टुक हिम राउंड इन द होल विलेज, पूरे गांव में उसको घुमाता रहता है, और खुद ही वो लुटकिंस था जिसको कि सम्मन सर्व होने थे, और सारे फ्रेंड्स के पास जहां पर भी वो गया, फ्रिट्स की शॉप पे गया, उसके बाद बार्बर की शॉप पर गया, फिर मदर के पास गया, तो उसको कितनी स्मार्टली वो कहता है कि तुम आगे मत जाना, मैं ही जाऊंगा और मैं ही पहले उनसे बात करूंगा, नहीं तो उनको डाउट हो जाएगा तेरे पे और वो भाग जाएगा लुटकिंस। एंड दैट वाज टू मैनिपुलेट द थिंग्स, कि उन लोगों को इशारा कर देता होगा, तभी वो हेजिटेट करता है ना, पहले बार बार हेजिटेट करता है जब उसकी शॉप पे जाते हैं, फिर उसको कह देता है कि वो अभी अभी यहाँ से गया है और शायद उसने मेरे दूसरी शॉप पे गया होगा या निकल चुका है यहाँ से, तो वो हेजिटेट करते हैं उसको बताते हुए। इट वॉज जस्ट हिज हिंट, कि वो उनको पहले ही इशारा कर देता होगा या मैनिपुलेट करता है अपनी चीजों को, कि सारे लोग जो हैं उसके फेवर में ही बोल रहे थे। किसी ने ये सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करा कि वही आदमी जो है वो लुटकिंस है। अपनी इंट्रोडक्शन वो बिल के तौर पर देता है और सारा दिन उसके साथ घूमता है और अपना बिजनेस भी अच्छा, उससे पैसे भी कमा लेता है, खाने के भी पैसे ले लेता है, लेकिन उसको धोखे में रखता है। he could not recognize, and here we feel that the young lawyer was a fool one, very innocent and simple person. He should have done his homework before coming. उसको आने से पहले पहचान करनी चाहिए थी कि किस आदमी को मिलने जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी फोटो खींच लेता अपने साथ, कुछ ना कुछ उसको अपना होमवर्क करके आना चाहिए था। He was not smart enough कि वो चुपचाप ऐसे ही आ गया उसको लीगल समन देने के लिए, जबकि उसको पता ही नहीं कि किसको देना है। He could not recognize, उस आदमी को पहचानता ही नहीं था, तो कहाँ उसको वो समन देता। So he was befooled by this smart boy, the hack driver. Clear? Now look at the questions. First, क्या? वन स्टोरी हाई मतलब ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद एक स्टोरी, ठीक है। आई वॉज नहीं, उसको भेजा गया दोबारा से उस समन सर्व करने के लिए, और अब उसके साथ एक पर्सन और उन्होंने भेजा जिसने कि ऑलरेडी इसके साथ काम किया हुआ था लुटकिन के साथ, और वो इसको पहचानता था, इस वजह से दूसरा आदमी साथ भेजा गया, क्योंकि इसको पहचान ही नहीं थी तो ये ढूंढ ही नहीं पाया सारा दिन।
Look at the questions now on the very first page. Why is the lawyer sent to New Million and what does he first think about the place? Yes, Krish? The lawyer was sent to New Millions to search the person Oliver Lutkins, whose judgment was required in the court in a particular case. He was sent to serve the summons to Oliver Lutkins. First of all, he thought that this place would be a sweet and a simple country village. But when he saw the village, he was disappointed as the streets were river of muds and with a row of wooden shops either painted with sore brown or bare of a painted.